রাম 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 হরে হরে। গুরু বন্দনা করি তাহার চরণ, সে ভক্তি সে শান্ত প্রভু পা। আর যত শিকা গুরু সবে বাঞ্ছা অল্প তরু, কৃপা কর কুচুগ বিষা। রূপ সনাতন প্রভু গৌরাচার্য বিভু, আরো সেই ভট্ট রঘুনা। गोपाल भट्ट वृंदावने ये संघट, मिले प्रभु दास रघुनाथ। গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংগঠ, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় से श्री चरण, अन्य मोर किछु आश নাই। গোস্বামী প্রভুর গান আশ্রয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মন কিছু আশা নাই। তার মধ্যে শ্রী জীব উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চারণেতে ঠাই। তার মধ্যে যে শ্রী জীব উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাই। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করি আনি লোটানিয়া। আমি সে দুর্মতি অতি বিষয়
ভগেতে মতি কৃপা করি আনিল টানিয়া মুখমুইনি চয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা করি দিলা সে সিঞ্চিয়া মূর্খ মুনি চয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বারি দিল সে চিন্তিয়া পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবার পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবার श्रीवासादि गदाधर कृपा करो ये किंकर बुझिलाम ताव कृपा सार শিবাসাদি গদাধর কৃপা কর এ কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপা সার वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति বৃন্দাবন রম্য স্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি তাহার চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি তাহার চরণে মুই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মর গতি শ্রী গীতার গান এই তোমারে চরণে থুই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি গীতার গান এই তোমার চরণে থই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি কি জানি কি লিখিয়ে একান্ত ভরসা তুমি এ লিখাও সেই পদ্যাবলী জানি কি লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব এই মোর নিত্য কালয়াশা অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব সেই মর নিত কাল ভকতি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে বিমোচন এই মায়ার পান
কিন্তু দাস হলে বিমোচন এ মায়ার পার। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Hare Krishna. Om Gyanatimirandhasya Nanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Shapadantikam. Vande Aham Shri Guram Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitangsha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripi. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhavaivacha patitanang pavunebha vaishnavebha namo namo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण। आज भगवद गीता नवम अध्याय, बहुत गुरुत्वपूर्ण अध्याय। इसका नाम राजो विद्या राजो गुच्छ्य। सारे भगवत भक्ति वर्णन कर। भगवत भक्ति राजो विद्या, राजा अर्थात श्रेष्ठ, सारे विद्या से श्रेष्ठ। और राज गुह्य, गुह्य अर्थात गोपनीय। इतना सारे गोपन ज्ञान है, सबसे गोपन ज्ञान भगवत भक्ति। ये
सप्तम 6-12 अध्याय, द्वादश अध्याय तक ये भक्ति षटक, भक्ति का वर्णन है। इनमें के 20 में और नवम अध्याय और भी 20 में है राजगुज्ज। तो वास्तव में सप्तम अध्याय से जो शुरू हुआ है वो ज्ञानी चल रहे हैं। सप्तम अध्याय में कहा मैं तुमको ज्ञान विज्ञान सहितम, वह भी इस तरह बताया था। सप्तम अध्याय जिसमें तुमको अभी जो ज्ञान दूंगा विज्ञान के साथ। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषत जद्गत्यनेव अन्य गतव्यम अवशिष्यते। अभी तुमको ज्ञान विज्ञान एक साथ दूंगा, ये जानने के बाद और कोई बचा नहीं है। तो वो बात, वो ज्ञान का है धारा चल रहा है। अभी ये श्लोक में वही बोला है, इदं तदे गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि ज्ञानम विज्ञान सहितम, फिर ज्ञान विज्ञान सहितम। तो अर्थात संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान अर्थात वस्तु विषय ज्ञान, विज्ञान अर्थात उपलब्ध ज्ञान, तो दोनों दे रहा है। श्री भगवान कहिलेन एबार हे अर्जुन सुनो अश्वारोहित एक गुज्जतम कहित वहित। हे अर्जुन अभी सुनिए, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? अश्वारोहित। अब मान लीजिए आप क्लास दे रहा है, सामने में कोई आदमी बैठा है, कल पकड़ कर कब कुछ बोलेगा मैं जवाब दूंगा। उसके सामने बोलने का कैसे लगेगा आपको? मान लीजिए आपको कोई शत्रु बैठा है उधर में, आप क्या गलती पर पकड़ने के लिए बैठा है, रिकॉर्ड करके बाद में वायरल कर देगा, तो उसी टाइम बोलने का आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। अश्वार, अश्वार शब्द अर्थात क्या है? अश्वार अर्थात देश, मत्स्य, ईर्ष्यापरायण। तो अश्वा और अनुसूया में अर्थात अश्वा नहीं, अश्वारोहित अर्थात जिसका देश नहीं। मैं तुमको क्यों दे रहा हूं ज्ञान? तुम मुझसे देश नहीं करते इसलिए। तो किसने का बोलना है? हाँ भी जो हमारे देश करेगा उनको उपदेश देंगे। मान लीजिए आपको कोई शत्रु है, आप एक गिलास जल देने डरेगा, भाई ये पी के कुछ होगा तो मेरा नाम केस कर देगा, उसमें जहर पिलाया था। नहीं भाई तुमको कुछ देना ही नहीं, प्रसाद देने से डरेंगे आप, भाई केस लगा दे मेरा पीछे। तो कृष्ण बोले मैं तुमको क्यों ज्ञान दे रहा हूं, क्यों ज्ञान दे रहा हूं? अश्वारोहित। यहां से क्या शिक्षा मिलते है हमको? हमको क्या मिल रहा है? गीता का केवल ज्ञान नहीं, किसी के पास ज्ञान लेना चाहिए, उसके पास देश रहेगा अंदर में, जो आएगा जहर बने घुस के अंदर में। ज्ञान लेना चाहते हैं? जिसके पास सुन रहा है उनके प्रति देश रहेगा, तो जो इतना अच्छा ज्ञान हमारे अंदर जाकर जहर बन जाएगा। तो दोष किसका है? दूध का कि सांप का? दूध तो दूध है, लेकिन वहां पर सांप का जहर बनता है, दूध का क्या दोष? तो इसीलिए हमारे किसी बात सुन के हमारे हृदय परिवर्तन है, जहर भर रहा है, दोष किसका? खुद का। क्या दोष? अश्वा, देश। यदि हमारे देश हृदय से निर्मल नहीं करेगा तो जितना हरि कथा सुनेंगे वो जाके अंदर में जाके जहर बनेगा। तो हमारी तरफ से तो ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? अश्वारोहित। ये बार हे अर्जुन सुनो अश्व। अर्जुन तुमको इसीलिए बता रहा हूं, तुम मेरा अश्वा करते नहीं देश। यही एक गुज्जतम, कोई अभी जो ज्ञान गुज्जतम, तम शब्द अर्थ क्या है? सर्वोच्च, गुज्ज सारे सबसे गोपन ज्ञान, तुम्हारे मंगल के लिए। यह है ज्ञानार विज्ञान सम्मत, जानिले से मुक्त है सर्व अशुभत। ये ज्ञान इस तरह है, इसके अंदर विज्ञान भी है। पहले तो मैं ज्ञान विज्ञान सहित तुम बताए, लेकिन अभी जो ज्ञान दे रहा हूं
ये तो गुज्जतम है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान भी है। और ये जानने से क्या होता है? सारे प्रकार अशुभ से मुक्त हो जाता है, कल जानने से। तो जानने से तो मुक्त होगा, हाँ, तो फिर प्रैक्टिस करने से क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? जानने से कैसे मुक्त हो जाता है? हाँ हाँ, क्यों? ये जानना इस तरह है, अपना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इसके अंदर जहर है, जानने से आप बच जाओगे, बस इसके अंदर जहर है। ये गिलास के अंदर आज आपको मृत्यु हो जाएगा उधर में, क्लास में जब बैठेंगे, क्योंकि वो गिलास के अंदर जहर है। ये जानने से आप मृत्यु से बच जाओगे। तो भगवत भक्ति ज्ञान इस तरह है, जानने से सारे मोह से मुक्त हो जाए। तो ये तो भौतिक ज्ञान। भक्ति तो और ज्यादा है। क्या होता है? राजविद्या यही ज्ञान राजगुज्ज कहे, पवित्र उत्तम तहा साधारण है। ये ज्ञान राजविद्या, सारी विद्या से विद्या का राजा, श्रेष्ठ। हाँ, विद्यावधु जीवनम, कृष्ण भक्ति है सारी विद्या का राजा। अतः शास्त्र में क्या कहता है? जे जना कृष्ण भक्त सेवा चतुर। कृष्ण भक्त से बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं दुनिया में। राजविद्या ज्ञान इतना ही क्या बोले? राजगुज्ज सबसे गोपन है। क्यों गोपन है? हर जगह में आदमी प्रचार कर रहा है कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि ये आत्मा विषय ज्ञान है। आत्मा को देखा ही नहीं देते, परमात्मा भी उसके अंदर, और उसको देखा ही नहीं देते। तो ये ज्ञान तो हाँ कितना गोपन होना चाहिए। राजगुज्ज कहे पवित्र उत्तम, ये पवित्र है। कितना पवित्र है? किस तरह पवित्र है? सारे अपवित्र वस्तु को पवित्र करने के बाद ही खुद पवित्र रहता है। इसको उदाहरण किसके साथ है प्रभुपाद? सूरज मलमूत्र को शुद्ध को फिर अपवित्र। तो भगवान का शक्ति, सूरज का यदि इतना क्षमता हो सकते, तो भगवान के इतना क्षमता होना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? पवित्र। और उत्तम शब्द अर्थ क्या है? उद्गततम। उद्गततम, उद्गत शब्द अर्थ क्या है? ऊपर उठना, उद्भीद, जो मिट्टी भेद करके ऊपर होता है उद्भीद। तो उद्गत ऊपर उठना, कहा? अंधेरा से मुक्त। तो जो अंधेरा से अज्ञान से मुक्त है उसका नाम है उत्तम। तो पवित्र उत्तम ये भगवत भक्ति ज्ञान, ये साधारण है। जहार साधन है प्रत्यक्ष अनुभव, सुसूक्ष्म धर्म है अव्यय वैभव। ये श्लोक में भगवत भक्ति का पूरा संज्ञा दे दिया, बहुत लंबा संज्ञा है। इसका साधन भक्ति इस तरह साधन करने से किस तरह होता है? हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव। अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष शब्द अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अक्षीर सम्मुख है प्रत्यक्ष, आंखों के समान, उसका नाम अक्ष, आंखें, आंखों के समान प्रत्यक्ष। जो आंखों में, ये तो गिलास है, इसके अंदर क्या गलती है? प्रत्यक्ष देख रहा हूं। यह आदमी बैठा है, कोई पशु जानवर नहीं है, प्रत्यक्ष आंखों के समान प्रत्यक्ष। तो भगवत भक्ति किस तरह है? प्रत्यक्ष अनुभव। शब्द अर्थ क्या है? इस तरह नहीं जी अनुभव दूसरा मिठाई खा के वो बोला है मिठाई इतना अच्छा है, कि वो खुद को अच्छा लगा, दूसरे के पास सुनना नहीं पड़ेगा। अनुभव प्रसाद खाने कितना बाद अनुभव होता है खाना अच्छा है, उसी समय डांस करने कितना बाद मजा लगता है डांस करना। हाँ, तो भगवत भक्ति इस तरह जब को उसी टाइम, इस तरह नहीं 5-10 साल बाद प्रत्यक्ष अभी करेंगे अभी मिल जाएगा। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव। और शुशुक, शुशुक शब्द अर्थ क्या है? हाँ, शुशुक तो अपनी समझते लगा है अच्छा सुख है,
अच्छा सुख ये कौन प्रसंग कहता है? ये गीता में संस्कृत सुशुकम कर्तुम, जब काम करते हैं तब तो करने से मजा लगता है। जिस तरह पढ़ाई मजा लगता है, नौकरी मजा लगता है, खाने मजा लगता है उसी तरह भक्ति करने में मजा लगता है। सुशुकम भक्ति इस तरह चीज है, जब करते उसी टाइम मजा लगता है। इसलिए आज भक्ति करेंगे 10 दिन बाद मजा लगेगा, उस तरह चीज नहीं। ये भक्ति है सुशुकुम और सिद्ध में अव्यय वैभव। अव्यय था, अव्यय था वो था कौन सा श्लोक? 240 न इह अभिक्रमणाश। अव्यय कोई व्याय नहीं, अव्यय वैभव, ये इस तरह वैभव है। वैभव था ऐश्वर्य, इस तरह भक्ति का इस तरह संपदा है। किस तरह संपदा है? ये जो बात है इस तरह संपद जो वर्णन हुआ है, ये राजविद्या है, ये राजगुज्य है, ये पवित्र है, उत्तम है, साधारण नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है, सुसुखम है और लास्ट में अव्यय। इस तरह वैभव है भक्ति का। इसके सुनने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ भी मूर्ख है उसके बाद भी भक्ति नहीं करते है, क्या कहे उनके बारे क्यों नहीं करते है? उसके बारे कहते हैं जहां आई ओहे परंताप यही धर्म विज्ञान ते वृथा जप ताप। किंतु जिसका श्रद्धा नहीं, हे परंतप अर्जुन, लेकिन जिसका ये बातों में विश्वास नहीं, अगर भक्ति नहीं करते, वो भक्ति नहीं करके जो कुछ करेगा, जब तब जो कुछ करेगा उसका का वृथा अर्थात निष्फल। श्याम के नहीं पाए जानी हो निश्चय, मृत्यु संसारेर पथे निरंतर रहे। रहे शब्द अर्थ क्या है? रह जाते हैं। वो किसी बोलते वो जिसको श्रद्धा नहीं है वो अब मुझको कभी नहीं प्राप्त होते, और कौन रास्ता में घूमते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र, हमेशा वो रास्ता का परमानेंट पैसेंजर बन के रहते हैं मृत्यु संसार पथे निरंतर रहे। इसीलिए श्रद्धा बहुत मूल्यवान वस्तु है। कौन कितना बड़ा अमीर आदमी कैसे पता चलता है? जिसको जितना धन है। आध्यात्मिक जीवन में कौन कितना बड़ा भक्ति है कैसे पता चलता है? जिसको जितना श्रद्धा है, जिसको जितना श्रद्धा है उतना अमीर व्यक्ति है। कहां पर श्रद्धा है? कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है, बस यहां पर श्रद्धा है। कृष्ण भक्ति करने और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका नाम है श्रद्धा है। कृष्ण कर्म कैले सारे काम हो जाते हैं, दूसरा करना चाहिए, इसका नाम है श्रद्धा। तो जो आध्यात्मिक जो जितना धनी बनना चाहता है, ये बात में देखना कितना विश्वास होता है। नहीं नहीं मेरा घर में तो पैसा भेजना चाहिए, कि कृष्ण नहीं देखेंगे? कृष्ण भी भूल जाएगा तो मेरा तो देखना पड़ेगा कृष्ण का तो बहुत सारे काम है, बहुत ही जगह चिन्ह जगह देखना, कितना सारे उनके भक्त है। हमारे पिता माता को भूल जाएगा तो हमारे पिता माता हमको देखना पड़ेगा तो भगवान बोल ठीक है मेरा काम बच गया, तुम मेरा जिम्मेदारी ले लिया है, तुम्हारे पिता माता देखने का मुझको नहीं देखने पड़ेगा, ठीक है तुम मेरा एजेंट बन गया, तुम देखो मैं दूसरा जगह जाता हूँ ठीक है अच्छा है। लेकिन यह कहता है क्या विशेष कहां पर? कृष्ण भक्ति को लिए सर्वकर्म कहता है। कृष्ण भक्ति करने से सारे काम है और दूसरा कुछ करना नहीं। अभी क्या लग रहा है? श्रद्धा विशेष करना चाहिए? हाँ ये सर नो। अभी क्यों बोल रहा है ये बात? क्यों बताते हैं कृष्ण इतना क्यों जोर दे रहा है? जो बुद्धि नहीं है वो इस तरह विश्वास नहीं करते हैं।
वो नहीं मिलेगा। ये बोलने का उद्देश्य क्या है? विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? किसके बारे में बोलना चाहते हैं कृष्ण यहाँ पर? आगे जो लेक्चर दे रहा है, अभी इतना हेवी क्यों बहुत बताता है? जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा, इसे विश्वास करना चाहिए। ये लेक्चर क्यों बार बार लेक्चर क्यों दे रहा है? कि आगे एक टॉपिक सारा है, उसको विश्वास नहीं करता खोपड़ी से ऊपर निकल चला जाएगा। तो इसलिए सुनना चाहते हो विश्वास के साथ सुनो। इतनी हेवी डोज दे रहा है कृष्ण। अभी जो सब्जेक्ट आ रहा है बहुत हेवी है, उसको श्रद्धा नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं है। रेडी साहब श्रद्धा के साथ सुनने के लिए? इसका अर्थ क्या है? अभी यदि यह लिखा रहेगा सूरज पश्चिम दिख में उठता है, पूर्व दिख में अस्त जाता है, मानेंगे? हाँ, इसके नाम श्रद्धा है। जो लिखा मानना पड़ेगा बस। इसीलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी, कृष्ण बलराम भगवान को उनताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, नृसिंहदेव भगवान की। हाँ, भगवान नहीं कहेंगे जो सत्य नहीं है। पूर्वतन आचार्य सब ने स्वीकार किया, हम दुर्भागा है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकते? वो लोग इतना ध्यान से देखा नहीं है क्या बात लगा है। मैं समझ गया कि नहीं हो सकते, ये दुर्भागा है। वो इतना खुद का दुर्भागा किसको बोलते हैं? दुर्भागा किसको बोलते हैं? दुर्भागा किसको बोलते हैं? दुर्भागा लक्ष्य नहीं जानियो निश्चय, अपन बुद्धि के मतलब भूल गया। जिसको खुद को बुद्धि को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं उसको दुर्भागा कहते हैं। दुर्भागा जिससे तो मेरा जीवन कोई नहीं है। अरे पूर्वतन आते सब ने मान लिया, तुमको मानने की समस्या क्या है? क्या है? सारा दुनिया मान लिया, आचार्य सब मान, नहीं हम नहीं मानेंगे। तो अभी जो आ रहा है जो प्रसंग है, हो सकता है सब कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए? श्रद्धा से मानना चाहिए। कि सब कुछ समझ में आएगा क्या? सब कुछ समझ में आते हैं क्या? और कुछ दिन बाद वैक्सीन लिया, कैसे काम करता है पता है क्या? क्यों लिया? नहीं, इम्यूनिटी बढ़ेगा। क्या है इम्यूनिटी? कैसे बढ़ता है पता है क्या? नहीं तो ले देता है। तो हर जगह श्रद्धा रखते हैं, यह क्यों नहीं रखते हैं? श्रद्धा से कौन सा काम आता है? अभी जो जल दिया है इधर में, मेरा विश्वास है इसके अंदर जहर नहीं है, इसीलिए पी रहा हूं। यह सोच एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते श्रद्धा नहीं होगा तो हर जगह तो श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। अभी मेरा विश्वास है भूकंप नहीं होगा, गिरेगा नहीं, इसीलिए मैं घर के अंदर बैठा हूं। यदि विश्वास नहीं कभी गिर जा सकते तो अंदर में घुसना ही मुश्किल होता था। तो हर काम में रात में तो श्रद्धा है। हाँ, एक आदमी ने कहा और तुम मछली सागर में मछली मारते जाते हो तो नाव डूब जाएगा तो? अच्छा, तुम्हारे पिता कैसे मार दिया? बोले मछली मारने के चल मार। बोले तुम्हारे दादाजी? बोले हाँ, मछली मारने के समुद्र डूब गया था। पर दादाजी बोले इस तरह। बोले इस नाव लेकर जो जाते हैं तो डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा आपका पिता मर गया? हाँ। बोले कैसे? अब बिस्तर में लेटा था। बोले आपका दादाजी? बिस्तर, तब बिस्तर में सोने डर नहीं लगता है? सब आदमी बिस्तर के सो के तो मरते हैं, खड़ा को कहा मरते हैं? किसी के डर के मारे कोई बिस्तर में नहीं सोएगा क्या? हर जगह में तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। तो यह भगवत भक्ति में कोई विश्वास नहीं रखते। तो अभी ये विश्वास बहुत जरूरी है। आगे जो बना अव्यक्त जो निर्विशेष हमारी रूप, जगत व्यापिया था कि अनिर्दिष्ट रूप। कृष्ण खुद के बारे अभी बताते हैं, मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, कृष्ण का शक्ति किया है, ये बनाना है। क्योंकि हम यदि कृष्ण के बारे नहीं जानेंगे श्रद्धा कैसे करेंगे? तो कृष्ण खुद के बारे बताते हैं। कृष्ण बोलते हैं अव्यक्त निर्विशेष हमारी रूप। अभी मेरा एक रूप है निराकार निर्विशेष अप्रकाशित, और उसको द्वारा जगत व्यापी था, मैं उसको द्वारा सारे जगत परिवर्तन। तो भगवान बोलते हैं मेरे एक
मैं तो मुझको तो देख रहा है मेरा आकार है, लेकिन मेरा एक शक्ति है, वो निर्विशेष निराकार अव्यक्त है, और वो शक्ति के द्वारा मैं सारा जगत में व्याप्त हूं। और आमाते जगत सब ना आमी ताहाते, सारे जगत मेरा अंदर है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूं। ये तो स्वाभाविक है। जिस तरह सारे जल ग्लास के अंदर, गिलास जल के अंदर है नहीं, ये बात सही है। क्या समझना चाहते, कठिन था नहीं। सारे जगत मेरा अंदर है, लेकिन मैं उसका अंदर नहीं होती, वो तो समझ में आता है। परिणाम है ता अमार शक्ति थे, ये इसको जो है ये मेरा शक्ति है। क्योंकि सारी जगत, आप बोलते आप तो इधर में खड़ा है, सारी जगत आपका अंदर में कैसे आता है, हो सकता है? ये मेरा शक्ति है। सारे जगत मेरे अंदर में है, आप इधर में खड़ा है तो आपका, हाँ वो मेरा, ये जो मेरा शक्ति है, उस शक्ति के अंदर ही सब कुछ है। इस तरह नहीं मेरे पेट के अंदर सब कुछ है, मेरा जो शक्ति है वो शक्ति के अंदर सब कुछ है। किस तरह? आमार शक्तिते थाके भिन्न आमा होते, जोगैश्वर्य सेई मोर बुझो भालो मते। मेरा शक्ति मेरे अंदर रहता है, लेकिन मेरे से अलग है। क्या बोलता है? आमार शक्ति था के मेरा शक्ति के अंदर रहता है। किसने बोला सब कुछ मेरे अंदर? मेरा अंदर कहां पर? मेरा शक्ति के अंदर। और उसके बाद मुझसे भिन्न है। और ये पहली बार सब कुछ आपका अंदर, फिर आपको से भिन्न कैसे हो सकते हैं? वो मेरा मैजिक है, जोगेश्वरी। मैजिशियन क्या दिखाता है? मैजिशियन कुछ दिखाता है जो आपको समझ में नहीं आता, कैसे हो सकता? तो एक छोटा मोटा मैजिशियन इस तरह दिखा सकता है, आपको समझ में नहीं आ सकता। मैं तो बड़ा मैजिशियन हूं, तो सारी चीज कैसे तुमको समझ में आएगा? मान लो ये चीज हो सकती है। ये मेरा जोगेश्वरी है। किस तरह? भर्ता सकल भूतेर नहिष भूतस्थ। हाँ, भूत भृत नाम और भूतादि तटस्थ। अर्थात भूत भृत मैं समस्त जीव का धारक हूं। भूतस्थ जगत, जगत मेरे अंदर है। भूतस्थ आत्मा भूत भावना, सारे जगत का उत्स में हूं। ये मेरा जोगैश्वर्य है। सारे जीव का धारक मैं हूं, मैं सर्वव्याप्त हूं, और मैं सारे सृष्टि का उद्गम हूं। हाँ, जोगैश्वर्य सत्य समझ में नहीं आता, फिर भी कृष्ण समझाने का कोशिश करते हैं। मेरा अंदर है, बोले मेरा अंदर, मैं उसका अंदर नहीं हूं। ये समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आकाश जे रूप वायु से रूप तुलना, आकाश पृथक होते वायुर चालना, आकाश सर्वत्र व्याप्त वायु যথা থাকে, तथा सर्वभूत स्थित থাকে যে আমাতে। यह उदाहरण देते हैं आकाश और वायु के साथ। आकाश, किसने बोला? आकाश मेरा शक्ति, और वायु है जीव। जिस तरह वायु सारे आकाश में घूम रहा है, कितना तेजी से घूम रहा है, लेकिन किसके अंदर? आकाश के अंदर। हम कहा वायु आकाश में घूम रहा है, लेकिन आकाश वायु के अंदर है क्या? नहीं, आकाश वायु के अंदर नहीं। आकाश और वायु आकाश के अंदर है। आकाश आर्य वायु से तुलना, ये आकाश और वायु की तुलना मेरा शक्ति है जीव से। आकाश पृथक होते वायु चल, आकाश वायु से अलग है। वायु घूम रहा है, लेकिन आकाश हमेशा अलग है। आकाश सर्वत्र व्याप्त वायु जत থাকে, आकाश तो हर जगह में है। लेकिन अभी यदि और एक विचार कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात सुन ले, आकाश के अंदर वायु है, तो जहां पर वायु है वहां पर आकाश नहीं है कि नहीं? मान लीजिए ये पूरा आकाश है, तो वायु वायु भरा है। जहां पर वायु भरा उसके अंदर आकाश है क्या? फिर उसके अंदर भी है। तो आकाश और वायु का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। यह तरह थोड़ा समझ सकते, हाँ ये हो सकता है।
आकाश और वायु के साथ जब इस तरह हो सकते तो भगवान के साथ ये जगत का क्यों नहीं हो सकता? आगे चलो। प्रकृति लय होले विश्राम आमाते, कल्पारंभे है सृष्टि पुनः आमा होते। अभी हम अष्टम अध्याय में सुना था ना, ब्रह्मा का दिन में सब सृष्टि होता है और रात में ध्वंस होता है। जब रात आता है उसको क्या बोलते, एक दिन को क्या बोलता है? एक कल्प। कल्प वही बोलते हैं। प्रकृति लय होले विश्राम आमाते, जब रात हो जाता है ब्रह्मा का, सब भगवान के अंदर विश्राम होता है। कल्पारंभ है सृष्टि पुनः आमा होता, फिर जब ब्रह्मा का दिन होते हैं कहाँ से सृष्टि होता है? फिर भगवान से। सोने के लिए कहा जाते हैं भगवान के शरीर में, फिर वह प्रलय। लेकिन जब इसे सारे जगत प्रलय हो जाते हैं तब भगवान कहा जाते हैं? भगवान भी रहते हैं, भगवान कहा जाएंगे? प्रलयर परे था कि आमी जे ईश्वर, सृष्टा सृष्ट जहा किछु हमारो किंकर। मैं प्रलय के बाद भी मैं ऐसे रहता हूं और दुनिया में जितना कुछ सृष्टि है मेरा द्वारा हुआ और मेरे नियंत्रण में है। आमार प्रकृति द्वारा सृजी पुनः पुनः, प्रकृतिर वश है जत भूत ग्राम। तो कृष्ण बोलते हैं मेरा प्रकृति के द्वारा सारे जगत बार बार सृष्टि करता है पुनः पुनः, और जितना सारे जीव है प्रकृति के वश में है। और वो प्रकृति किसका वश है? मेरा वश है। तो अल्टीमेटली मैं परोक्ष रूप में सबको नियंत्रण कर रहा हूं। ये जगत को मेरा शक्ति से, और मेरा शक्ति नियंत्रण कर रहा है, और शक्ति मेरा शक्ति अर्थात मेरा नियंत्रण में है। अतः इस तरह सारे जगत मेरा अंदर है। किंतु धनंजय तुम्हें बुझिबे निश्चय, प्रकृतिर कार्य कभू आमी लिप्त नय। लेकिन ये धनंजय ये भी जान लो, जब हाँ तो आप तो इनडायरेक्टली आप ही कर रहा है, लेकिन वो काम में मेरा नहीं है। कृष्ण बोल रहा है मेरा तरह हो रहा है, मेरा शक्ति से हर लेकिन उसके अंदर हाँ लिप्त तो नहीं हूं। किस तरह? उदासीन आमिषे प्रकृतिर कार्य, आसक्ति न है तो मोरे प्रकृति विधार्य। इस तरह काम के साथ मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। यह समझाने के लिए पूर्वाध उदाहरण देता है। जज कोई किसी का फांसी दिया है तो उनके लिए उनका फांसी होगा? जज का नहीं होगा। किसी को आइन कर दे, उनको 1 करोड़ रुपया मिल गया तो अगले दिन जाएगा भाई मैं उसको परसेंटेज दो ना, उनको लाभ हानि से उनको साथ कोई प्रभाव नहीं होता। तो एक हाईकोर्ट का जज यदि उनका संपर्क इस तरह हो सकता है, भगवान को क्यों नहीं हो सकते? एक कोर्ट का जज जब उदासीन के तरह इस तरह विचार कर सकते तो भगवान भी उसी तरह सब नियंत्रण करते। किस तरह होता है? बोलते हो मेरा अध्यक्षता से सब चीज चल रहा है। अध्यक्षता नियंत्रण, मेरा अध्यक्षता, मेरा इच्छा से इंगित मात्र सारे दुनिया चल रहा है। इंगित भी करना जरूरत नहीं होता है। हाँ, बड़े लोग की इंगित करना जरूरत होता है? बड़े आदमी को बोलना जरूरत नहीं होता है। नौकर बाकर समझते हैं हमारे बॉस क्या चाहते हैं। इंगित मात्र से मोर जरा कार्य करे, चराचर जत किछु प्रसवे सबारे। भगवान बोलते मैं इसके अंदर कोई इन्वॉल्व में नहीं हूं। दुनिया में जो काम चल रहा है ये प्रकृति कर रहा है। और प्रकृति किस तरह करता है? मेरा इंगित मात्र, बोलना नहीं पड़ेगा, वो बताते हैं, वो समझता है मैं क्या चाहता हूं। इसको उदाहरण क्या दिया क्या ब्रह्म संगीता में? दुर्गा किस तरह काम करता है? छाये वो जश्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम। दुर्गा देवी
कृष्ण का इच्छा अनुसार करता है। किस तरह? आदमी के साथ साया जिस तरह घूम चलते हैं, प्रकृति उस तरह कृष्ण का इच्छा समझकर इंगित मात्र काम करते हैं, और उस तरह सारे चर अचर जगत का सृष्टि करते हैं। जगत परिवर्तन है সেই সে কারণ, पुनः पुनः है যত जन्म मरण। इसी तरह जगत सृष्टि ध्वंस, पुनः पुनः सृष्टि होते हैं और ध्वंस होते हैं। इससे सुनने के बाद सब भक्त बनते हैं? बनते हैं नहीं। और उल्टे क्या करते हैं? उल्टे क्या करते हैं? कृष्ण को अवज्ञा करता है, निंदन करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? नहीं जानने के कारण। आपके पास में प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनका अवज्ञा करेंगे? हाँ करेंगे। यदि उसको नहीं जानते है प्रधानमंत्री है, यदि जानते प्रेसिडेंट के प्रधान, अवज्ञा करेंगे? अवज्ञा करने का कारण क्या है? उनका अज्ञान है, मूढ़ है। अवजानन्ति मांग मूढ़ा। আমার মনুষ্যকার বিগ্রহ দেখিয়া मूढ़ लोक नहीं बुझे अवज्ञा करिया। मेरा मनुष्य आकार देख के, अरे तो हमारे तरह मनुष्य है, उनका 2 हाथ मेरा 2 हाथ, उनका 2 पैर मेरा 2 पैर, उनके एक सर हमारे भी एक सर है, तो फिर उनको भगवान मानना क्या जरूरत है? मनुष्य बोलते हमार मनुष्य का विग्रह देखे, मेरा मनुष्य का विग्रह देखकर मूढ़ लोग नहीं बुझे, मूढ़ लोग नहीं समझते, मुझको अवज्ञा करते। आमी महेश्वरे जगत संसारे আমার परम भाव के बुझीते पारे। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं क्या हूं? महा ईश्वर। केवल ईश्वर नहीं हूं, मैं महा ईश्वर हूं। महा ईश्वर शब्द अर्थ क्या है? छोटा मोटा ईश्वर नहीं। देव देवी ईश्वर है, लेकिन सारे देव देवी की ईश्वर है भगवान, इसलिए भगवान है महेश्वर। आमी महेश्वर यही जगत संसार। ओ कृष्ण ना महेश्वर है क्या? हम सिर्फ शिव का नाम महेश्वर, तो समस्या क्या है? हाँ, कृष्ण को महेश्वर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ईश्वर बोले महेश्वर बोले, महेश्वर। कृष्ण को ईश्वर बोल सकते? कृष्ण को ईश्वर बोल सकते? कृष्ण को ईश्वर बोल सकते, शिव जी को महेश्वर बोल सकते हैं। कोई गलती है? हाँ नहीं, कोई गलती नहीं। कृष्ण को ईश्वर बोल सकते, शिव को महेश्वर बोल, कोई गलती नहीं है। कृष्ण को ईश्वर बोल सकते, कृष्ण को महेश्वर बोल सकते, कृष्ण को परमेश्वर बोल सकते, शिव को ईश्वर बोल सकते, महेश्वर बोल सकते, परमेश्वर नहीं बोल सकते। क्लियर? तो यह जो महेश्वर बोलता है कोई समस्या नहीं है। किसने बोलते मैं महेश्वर, आमी महेश्वर ये जगत संसार, ये जगत संसार में महेश्वर हूं। हमार परम भाव के बुझीते पारे, मैं कौन हूं, किसका क्षमता हो समझना। इसीलिए वो मुझको नहीं जानने के कारण मुझको साधारण आदमी समझकर अवज्ञा करते हैं। बंगाल में वो तो हाँ पीसी का हिंदी में क्या बोलते हैं? पीसी माँ, बुआ, बुआ। हाँ बोले चैतन्य तो शची पीसी का लड़का है शची बुआ का लड़का है, तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं? तो इस तरह साधारण आदमी समझते हैं। और इसके कारण कृष्ण को अवज्ञा करने का कारण क्या होता है? আমাকে অবজ্ঞাতাই ব্যর্থ সব আশা, विफल कर्म तार ज्ञानेर जिज्ञासा। कृष्ण को अवज्ञा करने के कारण क्या होता है? उसका सारे काम का रिजल्ट क्या होता है? रसगुल्ला, 0 बन जाते हैं। सारे कृष्ण को अवज्ञा करने सारे कर्म का फल 0। जहार आसुरी भाव राक्षस स्वभाव, सारे मोरे माने शुद्ध प्रकृति वैभव। इस तरह व्यक्ति क्या होता है? आसुरी भाव होता है, राक्षस होता है, और हाँ प्रकृति क्या
वशीभूत होकर मुझको अवज्ञा करते कारण उसे क्या था, उनका जितना सारा आशा है, यह तक मुक्ति लाभ करने की जो आशा करता है वो फल जीरो होता है। वो जितना कर्म करता है उसको निष्फल होता है। उनका जितना सारा ज्ञान है सब निष्फल होता है। प्रकृति मोहिनी मूर्ति तारे जारी मारे, मायामय मूर्ति बोले ताहारा मारे। तो तब इस तरह मूर्ख लोग को क्या करते, प्रकृति क्या करते, प्रकृति उनको मोहिनी मूर्ति लेकर उनको सताते हैं। और उसके कारण क्या बोलते हैं, भगवान के स्वरूप को क्या समझता है, मायामय। ओ कृष्ण का शरीर माया है। हम जिस तरह मरते हैं कृष्ण भी एक दिन मर गया। वो लोग वो कहानी सुनते, हाँ कृष्ण भी मर गया, कि तीर लग दिया और मर गया था। ये सुनने को बहुत मजा लगता है। तो इसका अज्ञ व्यक्ति क्या होता है, भगवान के शरीर के मायामय समझते हैं। लेकिन हाँ शास्त्र में कहता है जो इस तरह बोलते हैं ना, उसको मुख भी देखना नहीं चाहिए। उसको देखो दर्शन यदि हो जाएगा अभी, कापड़ा के साथ गंगा में स्नान करना चाहिए। यह कहता है जो व्यक्ति भौतिक कृष्ण से परमात्मा न, परमात्मा कृष्ण को शरीर को जो भौतिक समझते हैं, सर्वस्मत बहिष्कार्य श्रोत स्मार्त विधान, तो उनको सारे वैदिक आचार अनुष्ठान को निकाल देना चाहिए। जो सोचता है कृष्ण का शरीर भौतिक है, उसके सारे वैदिक कर्मकांड से उसको स्थान नहीं देना चाहिए। और मुखं तस्य अवलोका भी सचलों स्नानम आचरित, उसका मुख को भी देखने को मिल जाएगा दुर्भाग्य से, तो तुरंत कापड़ा तक खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब तो वो कापड़ा के साथ स्नान करना पड़ता है। लेकिन सब इस तरह नहीं होता है। कोई गीता का बात सुन के भक्ति करते हैं, उनका क्या बोलते हैं, उनका महात्मा बोलते हैं। अभी दुरात्मा का वर्णन कर दिया, अभी महात्मा का लक्षण क्या है। हाँ रबर स्टैम्प लगाने से महात्मा है, ये उसका आश्य उमुख महात्मा है, ऐसे महात्मा नहीं मानते। महात्मा का लक्षण है किंतु जब महात्मा से आराध्य प्रकृति आश्रय लिया करे भजन संगति। लेकिन महात्मा कौन है, इसको उल्टा कौन है, जो भगवान का दैवी प्रकृति का आश्रय करके बहुत निष्ठा के साथ भक्ति करते हैं। अनन्य मनेते करे विशुद्ध भजन, समस्त भूतेर आदि आमाके तखन। ये महात्मा क्यों इस तरह भगवान की सेवा करते हैं, वो जानते हैं भगवान सब कुछ है, समस्त जीव का आदि भगवान है। अब मान लीजिए कोई लाइन में बहुत आदमी बैठा है, प्रेसिडेंट है, बहुत बड़े आदमी बैठे हैं, तो हार देने के बोले किसको जाके देंगे, सबसे बड़े आदमी को देंगे। ये तो कॉमन सेंस का बात। तो यदि किसी को सेवा करना चाहिए किसको करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ। तो सारे श्रेष्ठ कौन है, ये महात्मा समझते हैं सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण। यह जानकर अनन्य मनते करे विशुद्ध भजन, जानते कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए अनन्य मन कृष्ण का सेवा करते हैं। इसीलिए महात्मा का अर्थ यही है जो हमेशा 24 घंटे कृष्ण की सेवा करते हैं, उसका नाम है महात्मा, उनका नाम महात्मा। महात्मा का लक्षण है। अभी अगले श्लोक महात्मा का लक्षण देता है, उनका काम क्या है, काम क्या है। ये तो महात्मा ये है, लेकिन उनका काम क्या है, सततं कीर्तनतमान। महात्मा काम क्या, नौकरी करना, पॉलिटिक्स करना, हाँ नहीं। महात्मा का काम क्या है, लक्षण से महात्मा है विलक्षण, महिमा हमारे करे सतत कीर्तन। कैसे पता चलता कौन महात्मा है, हमेशा कीर्तन करते हैं। हम कीर्तन के लिए लिस्ट बनाना पड़ता है, 1 घंटा कीर्तन करो, एकादशी दिन, उसके बाद भी नहीं आते हैं, कैसे महात्मा मान सकते। ये महात्मा तो सतत कीर्तन करते हैं, हमेशा कीर्तन करते हैं। हम 15 दिन 1 दिन 1 घंटा, उसके भी लिस्ट लगाने के बाद भी नहीं आते हैं। महात्मा का लक्षण क्या है, सतत कीर्तन करते हैं। महिमा हमारे का सतत कीर्तन।
আমার মহিমার জন্য সর্বকর্মে রত, সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত। अमार महिमा जन्य उनका काम किया है, भगवान का महिमा कीर्तन करने के लिए सारे काम में रहता है। भगवान का महिमा कीर्तन करना सिर्फ उनका दूसरा कोई काम ही नहीं। और सकल विषय जत हो दृढ़व्रत, एक दृढ़व्रत, व्रत शब्द से क्या है? संकल्प। एक कृष्ण भक्त दृढ़ संकल्प, ये करना ही है। ये भक्ति क्या, भक्त का लक्षण है। हम भी भक्त है, दूसरे भी भक्त है, यह अध्याय में दिख सकते। लेकिन यहाँ पे मंदिर में कुछ भक्त है, कितना दृढ़ संकल्प है। यह भी कुछ इस तरह भी भक्त है, आज तक एक दिन मंगल आरती मिस नहीं किया। इस तरह भक्त भी है, हमारे साथ भी है, हमको नजर में नहीं आता। इस तरह हो सकता क्या? हमें दृढ़ व्रत कहा है 9 बजे के पहले किसी ने पहुंचना, वह दृढ़ व्रत है। तो सकल विषय जाता हो दृढ़, अमार महिमा जन्य सर्वकर्मे रहता सकल विषय होती। तो अभी ये तो दुरात्मा और महात्मा बता दें कि इसके बीच में कुछ हो सकते क्या? इसके बीच में नहीं हो सकते। सब दुरात्मा और महात्मा, इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसके बीच में कुछ है, हम काल सुनेंगे। वो 3 प्रकार है। एक है एकत्वेन निराकरण भजन करता है, पृथकत्वेन देवता पूजा करता है, बहुधा विश्वतो मुखम भगवान के विश्व रूप में आराधना। उनका क्या गति होगा फिर? किसका गति कहाँ होगा? सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये वर्णन हम काल देखेंगे। हरे कृष्ण। ओके, श्री भगवान कहलें, एबार हे अर्जुन सुनो अशु आरोहित एबार हे अर्जुन सुनो अशु आरोहित एक गुज्जतम कही तब हित इहा হয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্মত জানিলে সে মুক্ত হয় সর্বশুভত রাজবিদ্যা এয় জ্ঞান রাজগুহ্য কহে পবিত্রয়ু তমু তাহা সাধারণ নহে যাহারু সাধন হয় প্রত্যক্ষনুভা
সুসুখ সে ধর্ম হয় অবয়বৈভাব। যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্তা। এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপতা। সে আমাকে নাহি পায় জানিহ নিশ্চয়। মৃত্যু সংসারের পথে নিরন্তর রায়। অব্যক্ত সে নির্বিশেষ আমারি রূপ। জগৎ ব্যাপিয়া থাকি অনির্দিষ্ট রূপ। আমাতে জগত সব নামি তাহাতে। পরিণাম হয় তাহা আমার শক্তিতে। আমার শক্তিতে থাকে ভিন্ন আমা হতে। যোগ ঐশ্বর্য সেয় মোর বুঝো ভালো মতে। ভর্তা সকল ভূতের নহি সে ভূতস্থ। ভূতভৃত নাম মোর ভূতাদি তটস্থ। আকাশ আর যে বায়ু সেরূপ তুলনা।
আকাশ পৃথক হতে বায়ুর চালনা, আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু যথা থাকে, তথা সর্বভূতস্থিত থাকে যে আমাতে। প্রকৃতির লয় হলে বিশ্রাময়ামাতে, কল্পারম্ভে হয় সৃষ্টি বুনয়ামা হতে, প্রলয়ের পরে থাকি আমি যে ঈশ্বর, সৃষ্ট সৃষ্ট যাহা কিছু আমার কিঙ্কর, আমার প্রকৃতি দ্বারা সৃজি পুনঃ পুনঃ, প্রকৃতির বশে হয় যত ভূত গ্রাম, কিন্তু ধনঞ্জয় তুমি বুঝিবে নিশ্চয়, প্রকৃতির কার্যে কো আমি লিপ্ত না, উদাসীন আমি সে প্রকৃতির কার্যে, আসক্তি না হেত মোর প্রকৃতি বিধার যে, ইঙ্গিত মাত্র সে মোর যারা কার্য করে, চরাচর যত কিছু
প্রসবে সবারে জগত পরিবর্তন হয় সেই সে কারণ পুনঃ পুনঃ হয় যত জনম মরণ আমার মনুষ্য কার বিগ্রহ দেখিয়া মূঢ়লোক নাহি বুঝে অবজ্ঞা করিয়া আমি মহেশ্বর জগত সংসারে আমার পরম ভাব কে বুঝিতে পারে আমাকে অবজ্ঞাতাই ব্যর্থ সব আশা বিফল রমতার জ্ঞানের জিজ্ঞাসা যাহার আসুরি ভাব রাক্ষস স্বভাব সারে মরে মানে শুধু প্রকৃতি বৈভব প্রকৃতি মোহিনী মূর্তি তারে জারি মারে মায়াময় মূর্তি বলে তাহারায়া মারে কিন্তু যে বা মহাত্মা সে আরাধ্য প্রকৃতি কিন্তু যে বা মহাত্মা সে আরাধ্য প্রকৃতি আশ্রয় লইয়া করে ভজন সঙ্গতি আশ্রয় লইয়া করে ভজন সঙ্গতি অনন্য মনেতে করে বিশুদ্ধ ভজন
অনন্য মানেতে করে বিশুদ্ধ ভজন। সমস্ত ভূতের আদি আমাকে তখন, সমস্ত ভূতের আদি আমাকে তখন। লক্ষণে সে মহাত্মার হয় বিলক্ষণ, মহিমায় আমার করে সতত কীর্তন। আর মহিমায় আমার করে সতত কীর্তন। আমার মহিমা জন্য সর্বকর্মে রত, আমার মহিমা জন্য সর্বকর্মে রত। সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত, সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम